স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে সবাইকে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে সবাইকে? সো আজকের থেকে আমরা স্টার্ট করব ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পার্টটা, ঠিক আছে? এবার আমরা ধীরে ধীরে শিফট করবো ডিজাইনিংয়ের থেকে ডেভেলপমেন্টের দিকে, ঠিক আছে? সো আগে কারা কারা জ্যাম্প ইনস্টল করে নিয়েছিস আগে আমাকে বলতো। তোদের মধ্যে কেউ জ্যাম্প ইনস্টল করে নিয়েছিস আগের থেকে? বলেছিলাম না জ্যাম্প ইনস্টল করতে? এইটা সবাই ডাউনলোড করেছিস? না না। সো জ্যাম্প ইনস্টল করে নিয়ে নিবি, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে ইন্টারফেসটা, ঠিক আছে? এমনি কিছু দেখতে এটা। সো এর মধ্যে একটা আছে দ্যাট অ্যাপাচে। এই অ্যাপাচেটা কি? অ্যাপাচে হচ্ছে একটা সার্ভার। অ্যাপাচে হচ্ছে এক রকমের সার্ভার, ঠিক আছে? আর মাই সিকিউএল এটা হলো ডেটাবেস, এটাও সবাই জানে। তো আগে আমাকে সার্ভারটাকে স্টার্ট করতে হবে। আমি সার্ভারটাকে স্টার্ট করলাম। অ্যান্ড সেকেন্ডলি আছে এখানে মাই সিকিউএল। তো মাই সিকিউএলটা আমাকে স্টার্ট করতে হবে। তো দুটাকে আমি স্টার্ট করি, ঠিক আছে? এবারে আমি চাই আমি যে যাও কাজ করব ওটা যেন আমার এখানে ব্রাউজারের মধ্যে যেন শো করে। তো এটা কী করব? ওর মধ্যে ফার্স্ট অফ অল আগে আমি যাব দিস পিসিতে, ঠিক আছে? দিস পিসিতে যাব, তারপরে যাব নিজের লোকাল ডিস্ক সিতে। লোকাল ডিস্ক সিতে গিয়ে তারপরে আমি যাব জ্যাম্পে গিয়ে আমি এখানে যাব এইচটি ডক্স। এখানে দেখুন এইচটি ডক্সে যাব, ঠিক আছে? এইচটি ডক্সে যাওয়ার পরে আমি এখানে কোনো একটা নিজের একটা ফাইল বানাবো, ঠিক আছে? আমি এখানে একটা ফাইল বানাবো দ্যাট SUBHANK শুভাঙ্কর বলে একটা আমি নিজের ফাইল বানাবো। আর এটা স্মল লেটার হবে, ঠিক আছে? সো এবার আমার এই ফাইলটা আমার লোকাল হোস্টে চলে এসেছে। আমি এটা দেখবো কী করে? ওইটা দেখবার জন্য আমি নিজের ব্রাউজারে যাব, ঠিক আছে? এখানে লিখবো লোকাল হোস্ট, ঠিক আছে? এখানে লিখবো লোকাল হোস্ট, তারপর একটা স্ল্যাশ দিব। স্ল্যাশ দেওয়ার পরে আমার যে ফোল্ডারের নেমটা SUBHANK এটা দিব। তো দেখ এখানে একটা আমার ইন্ডেক্স অফ শুভঙ্কর চলে এসেছে, ঠিক আছে? এতটা কারো ডাউট? এতটা কিছু ডাউট আছে এর মধ্যে? এটার মধ্যে কোনো ডাউট? সো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে এর মধ্যে এবার আমি কোনো একটা ফাইল বানাবো। সো এটা নিলাম দ্যাট লোকাল হোস্টের মধ্যে কী করে ফার্স্ট অফ অল কী করলাম রিপিট করছি। আমি নিজের জ্যাম সার্ভারকে স্টার্ট করলাম। জ্যাম সার্ভারের ডেফিনেশন কি? দ্যাট এইটা হচ্ছে এক রকমের তোর সার্ভার দ্যাট যেমনি তোর গুগলের সার্ভার আছে, সবার একটা সার্ভার আছে। তো তুই নিজের সিস্টেমের মধ্যে একটা সার্ভার কী করে বানাবি? ওর জন্য তোকে জ্যাম্প অথবা ভ্যাম চাই। তো বেসিক্যালি এখন মার্কেটের মধ্যে জ্যাম্প একটু ফেমাস আছে। সো উই উইল ইউজ জ্যাম্প, ঠিক আছে? তো জ্যাম্পটা ইনস্টল করবি। আর ইনস্টল করবার পরে এবার আমাকে কি করতে হবে? জ্যাম্পটা ইনস্টল করবার পর আমি কি করতে হবে? উই হ্যাভ টু গো ইন দিস পিসি। दिस पीसी दे जाबो। अच्छा, दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क सी है। लोकल डिस्क सी के अंदर फिर आपको मिलेगा यहाँ पर जैम, ठीक है? यहाँ पर देखा आपको मिलेगा जैम को खोलना है। उसके अंदर मिलेगा HT डॉक्स, ठीक है? HT डॉक्स इसको खोलूँगा। इसके अंदर मैंने एक अपना फाइल बना लिया है शुभांकर, ठीक है? ये एक एम्प्टी फोल्डर है। सो यही फोल्डर में मैं अपना काम करूँगा। अगर आपको अपना कुछ और फोल्डर बनाना है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आप लोग उसके नाम से आप लोग रख सकते हैं, ठीक है? सो ये शुभांकर मैंने फ़ोल्डर रखा। अब मैं इस फोल्डर को सर्च कैसे करूँगा? मैं अपना ब्राउज़र में आऊँगा और लिखूँगा लोकल होस्ट, ठीक है? लिखूँगा लोकल होस्ट और इसके बाद स्लैश देके यहाँ पर मेरा फाइल का नेम क्या नाम था? शुभांकर, SUBHANKR शुभांकर।
जस्ट सर्च करूँगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये आपका एक इंडेक्स आ गया। इसके अंदर ये पेरेंट डायरेक्टरी क्यों बता रहा है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। मैं अगर इस फाइल को खोल के देखूँ, इस फाइल के अंदर मेरा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर मैं इस फाइल के अंदर कुछ लेके आऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ट्यूटोरियल से कुछ 2-4 फोल्डर में लेके आता हूँ। जैसे ये इमेज है, ये इमेज और ये इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये HTML इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, पेस्ट। और अब यहाँ पर ब्राउज़र में मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो भी मैंने लाया है और यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर वो सब मेरा डेटा आ गया है। तो इसका मतलब मेरे को अपना कुछ भी फाइल को अगर होस्ट करना है तो मेरे को कहाँ से होस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपाचे ऑन करूँगा, फिर अपना दिस PC में आके जहाँ पर आपका XAMPP इंस्टॉल है, XAMPP के अंदर htdocs, उसके अंदर मेरे को एक अपना नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है। आपको जो भी नाम का फ़ोल्डर बनाना है, फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको जो भी वहाँ पर फाइल्स रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और ब्राउज़र में बस उसको वहाँ पर करके सर्च करना है दैट लोकल होस्ट, उसके बाद / शुभांकर, जो भी आपका फ़ोल्डर का नाम हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कैसे करके मैं अपना XAMPP में मैं कैसे करके काम करूँगा? किसी को कोई डाउट रिगार्डिंग टू दिस? नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग PHP के तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो PHP क्या है, पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ PHP। PHP एक तरह का सर्वर साइड कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरीके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो PHP एक तरह का सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सो ये असल में सर्वर साइड में ये काम करता है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मेरे को PHP फाइल बनाना है, अगर मेरे को PHP फाइल बनाना है तो मैं अपना विजुअल कोड जो मैं जाऊँगा और पहले ये जितना भी काम चल रहा है इसको मैं पहले बंद करूँगा और यहाँ पर ओपन फोल्डर, ठीक है। ओपन फोल्डर, अब मेरे को जाना कहाँ पर है, डेस्कटॉप नहीं, दिस PC के अंदर सी ड्राइव के अंदर क्या मिलेगा, सी ड्राइव के अंदर XAMPP मिलेगा, XAMPP के अंदर कौन मिलेगा, XAMPP के अंदर मिलेगा मेरे को htdocs, ठीक है। इसके अंदर शुभांकर और ये फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक परमिशन शायद मांगेगा, या हाँ परमिशन मांगेगा, यस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से मेरा कुछ फाइल प्रेजेंट है जो कि मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, तो मैं इसको पहले डिलीट कर दूँगा, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब एक छोटा सा एक PHP फाइल बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये होगा आपका day9 है ना, day9.php, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर बेसिक चीज़ है हेलो वर्ल्ड, तो PHP में हम लोग हेलो वर्ल्ड कैसे लिख सकते हैं। PHP में हेलो वर्ल्ड लिखने का तरीका है echo, ECHO, echo। बट उससे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, दैट इज़ मेरे को पहले एंगुलर ब्रैकेट देना है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर मेरे को लिखना है PHP सटा के, ठीक। और उसके बाद एंटर और एंगुलर मतलब क्वेश्चन मार्क से एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये है मेरा बेसिक कैसे मेरे को PHP लिखना है। इस तरीके से मेरे को पहले PHP लिखना है। अब इसके अंदर जो भी मैं कोड करूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लिखा कि echo, ECHO, echo हेलो वर्ल्ड, इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों चलता है। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सिंगल इन्वर्टेड में HELLO, हेलो, सो ये भी एक्सेप्टेबल है। सो अब मैं अगर यहाँ पर फाइल में आऊँ ना, तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो PHP का फाइल है, ये आपको एक क्या कहूँ, एक नॉर्मल से एक टेक्स्ट फाइल या आपको नॉर्मल एक फाइल दिखाएगा। इसमें आपको इसका आइकन नहीं दिखाएगा, आपका मतलब जो सर्वर आइकन होता है, मतलब जैसे HTML का आइकन कैसे होता है, HTML का आइकन इस तरह से आ जाता है, बट PHP का आइकन इस तरह का नहीं आता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सिस्टम PHP को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। नॉर्मल सिस्टम PHP को सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए मेरे को चाहिए XAMPP, ऑब्वियसली, इसीलिए मैंने XAMPP आप लोगों को इंस्टॉल करने के लिए कहा था। तो XAMPP इंस्टॉल करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, मेरे को XAMPP अगर आपको स्टार्ट हो गया चेक कर लीजिए, फिर यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहीं पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोड ले लिया है day9.php। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हेलो दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे इसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बेसिक पार्ट में किसी को कोई डाउट? इस पार्ट तक किसी को कोई डाउट, कैसे करके हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा PHP में?
नहीं, कंटिन्यू करें। ठीक, सो इसके बाद जैसे अब क्या सिमिलर कैलकुलेशंस अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग सी या सी प्लस प्लस में कैसे लिखते हैं, सी में लिखते हैं, सी या सी प्लस में आई एन टी ए इक्वल टू समथिंग, आई एन टी बी इक्वल टू समथिंग। इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें आपको सीधा डॉलर से आपको वेरिएबल असाइन करना है, ठीक है। डॉलर ए इज इक्वल्स टू 10, डॉलर ए इक्वल टू 10, और वैसे डॉलर बी इक्वल टू 20, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मेरे को सम करना है तो डॉलर सम इज इक्वल्स टू डॉलर ए प्लस डॉलर बी, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉन्कैट करना चाहूँ, जैसे मैं लिखता हूँ ना सी में कि द सम ऑफ ए एंड बी इज समथिंग परसेंटेज डी, तो इसमें मेरे को कैसे करना है, तो द सम ऑफ अगर मेरे को इसमें ए लिखना है तो ए का मतलब क्या, मेरे को डॉट दे के मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए, ठीक है। फिर द सम ऑफ ए एंड बी इज क्या होगा, सम, सम। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। ये सब बेसिक्स है, एक बार मैं बेसिक्स आपको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए आई गेस। सो सिमिलरली अगर मेरे को इसमें फॉर लूप चलाना है तो वैसे इसमें फॉर लूप के लिए भी ऑप्शन है। फॉर यहाँ पर मैं आई को 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो वही आई इज लेसर देन इक्वल टू 10, आई यहाँ पर परसेंटेज आई प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे को एको हेलो एंड यू आर तो सेव लेट्स रन। तो यहाँ पर देखिए आपको हेलो वर्ल्ड आपको इस सीरीज़ में मिल रहा है। तो हम लोग सी या सी प्लस प्लस में हम लोग क्या यूज़ करते थे, /n, ठीक है, याद है। सी या सी प्लस प्लस में क्या यूज़ करते थे, /n फॉर चेंजिंग द लाइन। बट यहाँ पर मेरे को क्या यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग HTML यूज़ कर रहे हैं तो HTML का हम लोग BR को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल यूज़ BR, ठीक है। और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको देखिए मिल चुका है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। मैंने क्या यूज़ किया, BR, ब्रेक लाइन। मैं ये किसका प्रॉपर्टी है, ये HTML का प्रॉपर्टी है BR, याद है ना। तो ये BR को मैं यूज़ किया बस इसका आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बेसिक प्रोग्रामिंग का किसी को कोई डाउट है? नहीं, कंटिन्यू करें। আমি একো শুধু প্রিন্ট করানোর জন্য ইউজ করব? এক্স্যাক্টলি, একো প্রিন্টার আর কিছু না। আচ্ছা আচ্ছা, একো শুধু প্রিন্টার জন্য। হুম। অন্য কোনো ডাউট? ना, कंटिन्यू करें। देन हम लोग जो सीखे थे फॉर्म, ठीक है, फॉर्म जब वहाँ पर दिखाए थे ना उधर, फॉर्म जब हम लोग सबमिट करते हैं उस फॉर्म के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं PHP के साथ, वो चलिए आज हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर मेरे को फॉर्म का, अगर मेरे पास अगर कोड पड़ा होगा, चलिए फॉर्म जब फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्म हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। सो एक फॉर्म बनाने के लिए वी नीड form.html, ठीक है। सो इस HTML में मैं कोड कर लेता हूँ, ओके। सो इस फॉर्म में मैं एक छोटा सा एक फॉर्म बनाता हूँ जिसमें मैं यूज़र का नाम इनपुट लूँगा और एक पेज में मेरे को रीडायरेक्ट करके वहाँ पर उसको हैंडल करवा के मैं उसका हाई जो भी मेरा नाम आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर चलिए कंटिन्यू करता हूँ। दैट फॉर्म फॉर्म सो यहाँ पर एक इनपुट होगा। इनपुट के लिए क्या चाहिए, टाइप टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ओके। इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल्स टू नेम। इसका मैं यूज़र के पास नेम लूँगा, ओके। एंड देन व्हाट वी नीड ओके डन। एंड उसके बाद होगा एक बटन सबमिट, UTT बटन, टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, टाइप इक्वल टू सबमिट, ओके। देन CLIC क्लिक, ठीक है। सो मैं अगर इसको नॉर्मली पहले मैं रन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर form.html मिला है।
तो यहाँ पर शुभांकर दत्ता लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ। कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। सो पहली बात, पहले यहाँ पर मेरे को हैंडलिंग करना है। अच्छा, ये चल जाएगा किसके पास? इसका एक्शन कौन लेगा? ACTION, एक्शन कौन लेगा? ये day9.php इसका एक्शन को हैंडल करेगा, ठीक है। day9.php इसका एक्शन को हैंडल करेगा और इसका जो मेथड होगा वो होगा गेट, ठीक है। सो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं अब सेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये आ गया किसके पास? day9 के पास। देख रहे हैं, पता चल रहा है इसमें हो क्या रहा है? ये क्या हो गया, मैंने जैसे इसमें नाम फिल करके मैंने सबमिट किया तो ये एक क्वेश्चन मार्क के बाद नेम इक्वल टू शुभांकर दत्ता आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो मेरा, हम जब फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, फॉर्म को सबमिट करने के बाद मेरा टोटली जो फॉर्म का जो डेटा है उसकी किसके पास जा रहा है? day9.php के पास। अब day9.php के पास कैसे जा रहा पता चल रहा है? यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि day9.php के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दैट नेम इक्वल टू शुभांकर दत्ता। तो इसी के थ्रू मेरे को पता चल रहा है कि अच्छा, ये जो मेरा पूरा डेटा है वो किसके पास आ रहा है? day9.php के पास। ओके, सो अब मैं इस पर कोड करता हूँ कि कैसे मैं इसका गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं चेक करूँगा, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, मैं इसका पहले गेट रिक्वेस्ट को लूँगा, दैट नेम इज इक्वल्स टू दैट _get गेट। क्या गेट करना है मेरे को गेट करना है यहाँ पर जो नेम है, यहाँ पर जो नेम आ रहा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ठीक है। और जस्ट मेरे को एको देना है दैट हाई, इसके बाद नेम, नेम, बस इतना ही, ठीक है। सो मैं इसको बैक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड नेम इस बार मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको हाई शुभांकर दत्ता मिल रहा है, ठीक है। ये हम लोग का जस्ट बेसिक कोड है, एक बेसिक कोड है। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट यूज़र से नाम लिया उसका, ठीक है। यूज़र से जस्ट उसका नाम लिया। क्लिक में मैं जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ वो उसका हैंडलिंग किसके पास आ जा रहा है? day9.php के पास विद द गेट मेथड जो भी इसका टॉप में आ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ वो हैंडल कर रहा है, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम टोटल कोडिंग का पार्ट कर सकते हैं PHP में फाइल में, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? मैंने क्या किया यहाँ तक? एनी डाउट? नहीं, ओके। सो मैं एक छोटा सा और एक प्रोग्राम बनाता हूँ दैट मेरे को 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। सो 2 नंबर को ऐड करने के लिए क्या करना है? दैट वी विल टेक 2 नंबर्स, दैट टाइप NUMBR नंबर, ओके, टाइप नंबर, कॉपी पेस्ट, नेम एंड A and this will be B, okay. So we will take A and B, okay. So back करता हूँ, refresh, यहाँ पर 10 and this will be 20। अब जब मैं इसको क्लिक में सेंड करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ठीक है। एरर मैं थोड़ा बाद डिस्कस करता हूँ, ठीक है। A and B यहाँ से अब मेरे को लेना है, तो यहाँ पर A and B कैसे लिख सकते हैं? दैट A and Ctrl C copy, Ctrl V paste, that A and this is for B, so ये हो गया B। सो अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब जब इसको मैं ऐड करूँगा ना, आई गेस इसका एडिशनल मेरा ADD ऐड इज इक्वल्स टू A प्लस B, ठीक है, डॉट ADD ऐड, ठीक है। अब मैं इसको बैक करता हूँ और सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मेरा एडिशन होके आ रहा है, ठीक है। इसमें जो बेसिक एरर क्या है? मान लेते हैं एक हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हम जो गेट मेथड से हम गेट मेथड को हम लोग अनडिफाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं गेट मेथड को अनडिफाइन छोड़ते हैं। यहाँ पर मैंने बैक किया और मैंने इसको कुछ नहीं फिल किया, और क्लिक में देखिए मैंने क्या किया, B में कुछ मैंने मेथड दिया ही नहीं, मतलब B का मेरा वैल्यू नल है। तो यहाँ पर इसको पता कैसे चले कि B का वैल्यू नल है? तो उसके लिए होता है यहाँ पर कि इस सेट, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस सेट। क्या यूज़ करते हैं? इस सेट। अगर मेरे को यहाँ पर ये नहीं मालूम कि इफ़ इस सेट इज़ SET, इस सेट, ठीक है। इफ़ इस सेट कौन? मेरा A_, ये, ठीक है, A_, ये एंड इस सेट, ठीक है,
इस सेट अगर ये दोनों मेरा इस सेट है नहीं, ठीक है, तो फिर ये हो गया मेरा इस सेट का कंडीशन ट्रू। एल्स यहाँ पर एक आउटपुट दिखाएगा दैट ECHO एको डेटा एरर, डेटा एरर, ठीक है, डेटा एरर। सो मैं इसको अभी क्योंकि इसमें डेटा आ रहा है, क्योंकि बी का वैल्यू आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूँ और मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, डेटा एरर। क्यों? क्योंकि इसमें बी का वैल्यू मेरे को कुछ मिला नहीं है। तो बी का वैल्यू अगर मेरे को नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, डेटा एरर है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया बेसिक्स पार्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉगिन जो पेज है हम लोग का, ठीक है, तो मैंने उस दिन एक जो आपको लॉगिन पेज बना के जो दिखाया था, मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। कौन सा था पेज? इंडेक्स, ओके, इंडेक्स, यही पेज था, हाँ, ये इंडेक्स डॉट ये वाला है, ठीक है। तो इस इंडेक्स को मैं इस फाइल के अंदर लेके आ गया। एक बात याद रखिएगा, अगर मैं कोई फाइल के अंदर index.html या index.php लिखूँ तो ऑटोमेटिकली उस फाइल का, जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा देर पहले क्या हो रहा था, जब मैं शुभांकर सर्च कर रहा था लोकल और /शुभांकर, तब मेरा कुछ सेट ऑफ फाइल दिखा रहा था। बट जब मैं index.html या कोई भी ऐसा फाइल का नाम इंडेक्स से स्टार्ट कर दूँ, तब मेरा ये नहीं दिखाएगा, तब मेरा वो index.html इंडेक्स फाइल में ऑटोमेटिक रेफ़र कर देगा। तो इसमें जब मैंने पहले जब मैं क्लिक किया था तब क्या हो रहा था, तब हो रहा था कि आपका जितना ही फाइल है सब फाइल दिखा रहा था। बट अगर अभी मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पर मेरा वो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरा यहाँ पर index.file में मेरा डायरेक्ट रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी फाइल को लेता हूँ और इसका जो इमेजेस था, बैकअप इमेजेस था, मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। ये था, आई गेस ये था और भी कोई था क्या? हाँ, ये था, कॉपी पेस्ट, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये आ गया। और क्या क्या था, index.html। अब जो इमेजेस जो मेरा नहीं आ रहा है, दैट विल बी ड्यू टू, एक मिनट, आधा घंटा करो, आप 8:30 करो, 8:30 करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक्चुअली ये जो स्लैश ये सब इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी स्लैश है ये सब को मेरे को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्लैश हटा दिया, तब जाके ये सब काम करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको केयरफुल रहना है, ये सब चीज़। अब ठीक है, पूरा पेज। तो ये सब चीज़ मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर इसमें भी मैं हटा देता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ। अब मेरे को करना ये है कि मैं जैसे ही इसका फॉर्म को सबमिट करूँ, जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट करूँ ईमेल आईडी और पासवर्ड, वैसे ही मेरा सर्वर के पास जाए और सर्वर के से चेक करके ये मेरा रिटर्न दिखाए कि आपका जो आईडी या पासवर्ड है वो गलत है या सही है, ठीक है। सो मैं अपना आईडी पासवर्ड को फ़िलहाल के लिए, अभी तक तो मैं हम लोग MySQL यूज़ नहीं किए, जब लोग MySQL यूज़ करेंगे तब हम लोग उसको सेव करना स्टार्ट कर देंगे, आईडी पासवर्ड हो सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग स्टैटिक वे से ही हम लोग उसको काम करते हैं, ठीक है। तो अब जो ये फॉर्म है, यहाँ पर जो मैंने फॉर्म लिखा था, मैंने जो पूरा बनाया था, ये फॉर्म का जब सबमिट होगा, मतलब जब इसमें सबमिट होगा यहाँ पर, ठीक है, जब ये फॉर्म सबमिट होगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा, इसका एक्शन किसके पास चल जाएगा? ACTION एक्शन फॉर्म के पास, फॉर्म या मैं एक ऐसा PHP फाइल बनाता हूँ, check.php, ठीक है। इसका हैंडलिंग कौन करेगा? check.php। और मेथड क्या होगा? METHOD मेथड होगा मेरा गेट,
ठीक है। सो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और फ़िलहाल के लिए पहले से मेरा कुछ ना कुछ सेट है, ठीक है। सो इस पर जैसे ही लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो @gmail.com। मैं यहाँ पर अब आपको दिखा रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका फाइल है ये आपको check.php मेरे को मेल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या, मेरे को check.php फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल मेक दिस check.php फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, अब मेरे को गेट का काम करना है, ठीक है। ये PHP स्टार्ट किया और यहाँ से मैं मेथड को एक्सेप्ट करूँगा दैट ईमेल, ठीक है। पहला ईमेल इज इक्वल्स टू गेट ईमेल। पहला क्या है, पहला पैरामीटर है ईमेल पैरामीटर, ईमेल पैरामीटर, ठीक है। सेकंड पैरामीटर क्या है, सेकंड पैरामीटर है पासवर्ड इज इक्वल्स टू ये अंडरस्कोर गेट पासवर्ड पैरामीटर, ये पासवर्ड पैरामीटर, ठीक है। अब मैं इस दोनों पैरामीटर को चेक करूँगा कि इफ़ ईमेल इज इक्वल टू अगर ईमेल इक्वल टू SUBHANKR शुभांकर 0810 @gmail.com अगर हो, तब जाके मेरा पासवर्ड को चेक करेगा कि इफ़ पासवर्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल SUB @1234 ये हो, तब जाके यहाँ पर मेरा एक एको देगा दैट यू आर बीन सक्सेसफुली लॉग इन, LOG लॉग इन, ठीक है। और या तो एल्स इसमें देगा मेरा क्या, पासवर्ड एरर, तो पासवर्ड एरर, ठीक है। एल्स ईमेल नॉट रजिस्टर्ड, ईमेल नॉट ईमेल नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं बैक करता हूँ, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या था, शुभांकर 0810 @gmail.com, ठीक है। और इसके बाद कैपिटल SUB @1234, आई थिंक 1234 था, हाँ 1234। मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है सक्सेसफुली लॉगिन। अब एक खास चीज़ आपको देखने मिलेगा, दैट यहाँ पर सेव पासवर्ड पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि अब आप सर्वर साइट पे काम कर रहे हैं। तो जैसे आप सर्वर साइट पे काम करेंगे तो आपको वहाँ पर सेव पासवर्ड जो क्रेडेंशियल्स है वो आपको दिखाना शुरू होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ कि शुभांकर, मैं यहाँ पर कुछ गलत ईमेल दे देता हूँ, ठीक है, कुछ गलत ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे साइन इन करूँगा यहाँ पर दिखा रहा है ईमेल नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। मैं क्या दिखा रहा है, ईमेल नॉट रजिस्टर्ड। अगर मैं ईमेल सही दूँ 0810 अगर मैं ईमेल सही दूँ और मैं पासवर्ड गलत दे दूँ, ठीक है, कुछ मैं गलत पासवर्ड दे दूँ, तो यहाँ पर क्या पासवर्ड है। यहाँ तक किसी को क्या कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब जो हम लोग का अब थोड़ा और एडवांस पार्ट में आते हैं, दैट अगर आप देख पा रहे हैं कि हम जब ईमेल आईडी और पासवर्ड जब हम लोग फिल कर रहे हैं, हम एक अगला पेज में चल जा रहे हैं, ठीक है। बट मेरे को ये चाहिए नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम जिस पेज में हैं हम उसी पेज में रहें, बट हम क्या हो, मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक्चुअली दूसरा पेज में रीडायरेक्ट हो जा रहा है। सो उसको और बेटर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर एक्शन है, यहाँ पर मैं एक मिनट कोड मेरे को एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, मेरे को चेक करके बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन।
यहाँ पर मैं एक मिनट ये कोड कॉपी कर लेता हूँ जस्ट। सो अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको चैट बॉक्स में भी दे देता हूँ, ये कोड मैंने चैट बॉक्स में दे दिया। अगर मैं चाहूँ कि मैं सेम पेज में ही मैं काम करूँ, ठीक है, मैं सेम पेज में ही काम करूँ, दैट अगर मेरा पासवर्ड सक्सेसफुल है तो ऑब्वियसली यहीं पर दिखा दे कि सेम पेज में। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, फ़िलहाल हो रहा है कि आपका दूसरा पेज में रीडायरेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी क्या हो रहा है, फ़िलहाल के लिए आप दूसरा पेज में रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसी सेम पेज में मेरा सब काम हो जाए। अगर बाई चांस अगर मेरा कुछ अगर सही पासवर्ड आया तब जाके मैं उसको अगला प्लेटफॉर्म में या अगला पेज में मैं सेंड कर सकता हूँ, ये मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहीं पर पूरा इंडेक्स, यहाँ पर जो भी है इसको मैं कॉपी करके, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक नया बनाता हूँ कि login.php एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है। इसमें पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद जो भी मेरा index.html का जो भी कोड है मैं उसको पूरा कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा ना login.php, तो आपको मिलेगा login.php, आपको मिलेगा सेम इंटरफेस। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि PHP एक इतना वर्बल लैंग्वेज है, इतना अच्छा लैंग्वेज है कि HTML को इजीली डिप्लॉय कर लेता है आपने। वहीं अगर आप Node.js में बनाने जाओ इसी सेम प्रोजेक्ट को, तो आपको अलग अलग टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अलग अलग टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। बट इसमें आपको HTML में ही पूरा काम हो सकता है, HTML CSS। आप देख सकते हैं कि मैंने सेम जो HTML का कोड था मैंने पूरा को कॉपी किया और जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया PHP का फाइल, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट काम है, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा ये कहाँ गया, टॉप, ये टॉप, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। जहाँ पर मेरा फॉर्म का जो एक्शन हो रहा था, जहाँ पर मेरा फॉर्म का एक्शन हो रहा था, यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। क्यों? क्योंकि अब जो एक्शन होगा ये एक्शन खुद ब खुद अपने ही पेज में एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब मैं अगर फॉर्म को अगर सबमिट करने जाऊँ यहाँ पर तो अब मेरा रीडायरेक्ट का काम नहीं होगा, अब मेरा सेम पेज में ही मेरा काम हो रहा है, ठीक है। अब इसको पता कैसे करें? पता ऐसे करके करना पड़ेगा दैट जैसे ही मेरा मेथड गेट के थ्रू जा रहा है इस फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर चेक कराऊँगा कि वो सबसे टॉप में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर पहले चेक करूँगा दैट इफ़, पहले मैं यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इसका जो सबमिट बटन है वो प्रेस हुआ कि नहीं। तो उसके लिए पहले मेरे को इफ़ इस सेट गेट में मेरे को पहले सबमिट बटन का जो लिंक है, मतलब जो नेम है, उससे मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा। तो सबमिट बटन का नेम क्या है? यहाँ पर आपको सबमिट बटन है, आई गेस। यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड, फिर बटन, क्लास, लॉगिन। हाँ, इसका नेम हो जाएगा, नेम टू लॉगिन, ठीक है। जैसे ही इस लॉगिन को प्रेस किया जाएगा, जैसे ही इस लॉगिन को प्रेस किया जाएगा, तब यहाँ पर मेरा एक एको आना चाहिए दैट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले बता रहा नोटिस अनडिफाइंड की लाइन नंबर 3 पहले अनडिफाइंड है, ठीक है। लाइन नंबर 3 इसलिए अनडिफाइंड है क्योंकि लॉगिन अभी तक आया नहीं है। तो जब लॉगिन आएगा gmail.com, अब मैं जैसे लॉगिन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर चीज़ मेरा रीडायरेक्ट हो गया पूरा, ठीक है। और जो मेरा मेथड है, इसमें मेरे को मेथड गेट मेथड नहीं, इसमें मेरे को पोस्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा।
POST पोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मैं मेथड टाइप में करूँगा, यहाँ पर कहाँ गया मेथड गेट नहीं पोस्ट POST पोस्ट, ठीक है। सेव एंड रन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ, रिफ्रेश। तो @gmail.com जैसे मैं सबमिट करूँगा तो अब जो काम है अब यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा। दैट अगर ये इस सेट हुआ, ठीक है, अगर ये लॉगिन अगर इस सेट हुआ, दैट इज सेट, ठीक है। अगर ये इस सेट हुआ तब जाके मेरा यहाँ पर कुछ एक आएगा, मैं मतलब मेरा चेकिंग स्टार्ट होगा। एल्स यहाँ पर एल्स का कोई वैसे काम है, एल्स का वैसे मेरा कोई काम है, ये सबमिशन। सो जैसे ही मेरा आएगा तो मैं बाकी डेटास को लेना स्टार्ट करूँगा। दैट यहाँ से मेरा तो पहले से सब कुछ किया हुआ है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी और पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर कॉपी और यहीं पर पेस्ट, ठीक है। सो और भी कुछ ऐड करना, हाँ इसमें जो भी मेरा गेट है उसको मेरे को कर देना है पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट। अगर मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हुआ तो मैं इसको रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ दूसरा पेज पर, ठीक है। दैट रीडायरेक्ट करने के लिए वी हैव टू यूज़ हेडर, ठीक है। हेडर और इसके अंदर लोकेशन है, लोकेशन। मैं एक पेज बना लेता हूँ दूसरा HTML पेज, दैट success.html success.html। इस पेज में मैं लिख दूँगा हेलो तो यहाँ पर जैसे ही काम हो जाएगा तो यहाँ पर success.html में मेरा पूरा फाइल रीडायरेक्ट हो जाना है। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ पहले कि क्या ये हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ईमेल नॉट रजिस्टर बता रहा है। तो मेरे को पहले सबसे पहले तो मेरे को SUBHAN किया शुभांकर 0810@gmail.com ये मैंने लिखा, और यहाँ पर सक्सेसफुल जो पासवर्ड है 1234 मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मेरा success.html मेरा पेज आ चुका है, ठीक है। सो अगर मैं ये करता हूँ कि मैं गलत पासवर्ड या कुछ देता हूँ, ठीक है, शुभांकर 0810@gmail.com, ठीक है, और लॉगिन करने का कोशिश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पासवर्ड एरर। अगर आपको ठीक से मैं दिखाऊँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है पासवर्ड एरर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रेडेंशियल चेकिंग, ठीक है, कि आप कैसे करके चेक करके आप दूसरा साइट में भेज रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक मैंने जो भी बताया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कैसे करके, मतलब क्या चीज़ रीडायरेक्ट हो रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है? कोड एक बार देख लीजिए। क्या किया मैंने, जस्ट जो मेरा कोड था उसको मैंने जैसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर जो सेल्फ जो है यहाँ पर मैंने कर दिया सेल्फ, ठीक है, यहाँ पर कर दिया इसको टोटली सेल्फ, ठीक है। ये इसका एक्शन हो गया मेरा PHP सेल्फ, ठीक है। और मेथड होगा मेरा पोस्ट, इसमें मेरा मेथड होगा क्या, पोस्ट, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इस पूरा जो पार्ट है इस पूरा पार्ट को अब हैंडल करेगा यहाँ पर टॉप PHP फाइल, कि जैसे इस लॉगिन पे क्लिक हो, जैसे इस लॉगिन पे क्लिक हो मेरा हर एक डेटा आ जाए यहाँ पर, ठीक। हर एक डेटा आने के बाद इफ़ email इज इक्वल्स टू ये पार्ट रहा और पासवर्ड इज इक्वल्स टू ये पार्ट रहा, तब जाके ये हेडर हो जाएगा। ये किस लिए होता है, ये होता है रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट। और बाकी यहाँ पर पासवर्ड एरर के लिए पासवर्ड एरर और ईमेल नॉट रजिस्टर्ड के लिए ईमेल नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? एनी डाउट? नहीं है? सो ये तो हो गया आपका बेसिक्स, जो भी मतलब कैसे करके मैं लॉगिन को हैंडल करूँ, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा और इसमें क्या एडवांस हम लोग डाल सकते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। दैट अगर मैं इसमें बात करूँ, दैट मैं इसमें ईमेल जैसे इंसर्ट कर रहा हूँ तो 0810@gmail.com, ठीक है। और अगर मैं ये कुछ ऐसा चाहूँ कि मैं HTML में PHP को इंक्लूड करूँ, ठीक है,
ये हो गया आपका जेनरिक मेथड, ये हो गया नॉर्मल जेनरिक मेथड। बट अगर आपको इसको और बेटर बनाना है तब देन आपको एजेक्स यूज़ करना पड़ेगा। देन आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एजेक्स। ठीक है, तो एजेक्स कैसे यूज़ करते हैं मैं चलिए आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मतलब जो भी बेसिक पार्ट है आज यहीं पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कल से हम लोग टोटली जो एडवांस पार्ट्स में है, जैसे SQL में कैसे हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ इंडेक्स में। ठीक है, index.html। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा जावास्क्रिप्ट में आ जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का कुछ पार्ट्स है, यहाँ तक है। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक होना, कहाँ गया ये बटन, सबमिट बटन, कहाँ गया सबमिट बटन, यहाँ पर। तो इसका जो पोस्ट होगा, पोस्ट, ठीक है, इसका पोस्ट मेथड होगा। और जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, और इसको भी मेरे को कुछ करना है, एक्शन में मेरे को कुछ देना है, एक्शन में नथिंग। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वहाँ पर email.com, तो ये मेरा सेम पेज में मेरा रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, और मेरे को यही चाहिए था। सो इनिशियली सबका मेरा वैल्यू, क्योंकि मेरा पहले से वैल्यू कुछ लिखा हुआ है, तो वैल्यू इज इक्वल टू नल, यहाँ पर x, और यहाँ पर ओके। ठीक है, अब मैं जैसे इस फॉर्म को सबमिट करूँ, ठीक है, जैसे इस फॉर्म में ऑन सबमिट क्लिक होगा, ठीक है, तभी क्या होना चाहिए, इसमें एक फंक्शन होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, दैट ऑन सबमिट। या तो ऐसे नहीं करते हैं, या तो जैसे इस बटन पे क्लिक हो, कौन सा बटन, लॉगिन बटन, ये है मेरा लॉगिन बटन, ID लॉगिन। ठीक है, तो जैसे लॉगिन पे क्लिक हो तो मेरे हर, जैसे हम लोग चीज़ों को चेक करते थे वैसे हम लोग चीज़ों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर कहाँ गया, सो मैं लेता हूँ लेट बटन, बटन इज इक्वल्स टू, या तो ऐसा करते हैं सबमिट ले लेते हैं, सबमिट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है, गेट एलिमेंट बाई ID, और इसमें क्या ID है इसका ID है मेरा लॉगिन, LOGIN। इस जैसे इस लॉगिन पे क्लिक हो तब मेरा एक पॉपअप आ जाना चाहिए, दैट इज सबमिट डॉट क्या था, ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर होगा, और इसमें मेरा कौन सा इवेंट है, क्लिक, जैसे इस पर CLIC क्लिक हो वैसे ही मेरा एक फंक्शन काम करना चाहिए। ठीक है, वैसे ही मेरा फंक्शन काम करना चाहिए, दैट यहाँ पर मेरा दिखाएगा दैट ALERT अलर्ट, सो चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे सेंड क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक हेलो दिखा रहा है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसका जो यहाँ पर जो ईमेल आया, जो पासवर्ड आया, उसको मैं एक जगह कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो उसको मैं लेट email इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, क्या ID है, ईमेल। ठीक है, ईमेल, इसका मेरे को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, वैल्यू। ठीक है, इसका मेरे को चाहिए वैल्यू, और सिमिलरली लेट पासवर्ड इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, EASS पासवर्ड। ठीक है, क्या नाम था इसका, यहाँ पर से मेरे को नेम सब चेक करना पड़ेगा, दैट इनपुट नेम के लिए ईमेल और पासवर्ड के लिए पासवर्ड, EASS WORD पासवर्ड डॉट ALERT। ठीक है, अब इसको मेरे को डिस्प्ले कर देना है यूज़र को, डॉट ALERT अलर्ट, मेरे इसमें आ रहा है कि नहीं, ये नहीं आ रहा, चेक करने के लिए। ठीक है, या मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कंसोल लॉग में दे देता हूँ, CNS कंसोल डॉट लॉग ईमेल। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग EASS पासवर्ड। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है, कंसोल लॉग में अब मैं करता हूँ यहाँ पर वहाँ पर
10@gmail.com और पासवर्ड में कैपिटल एस जैसे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर मेरा चीज़ तो रिफ्रेश हुआ, बट यहाँ पर मेरा, अगर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ तो यहाँ पर मेरा चीज़ यहाँ पर आया है, नाम आया है, ठीक है, यहाँ पर नेम्स आए हैं, ठीक है। सो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरा जो पूरा डेटा है वो डेटा मेरा एक PHP फाइल में जाए और वहाँ से चेक करके रीडायरेक्ट करे, वो PHP मेरे को रिटर्न करे कि ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है, ठीक है। तो HTML से मैंने फॉर्म में नहीं किया, तो अब मेरे को क्या यूज़ करने पड़ेगा इसके लिए, देन वी हैव टू यूज़ एजेक्स, तो एजेक्स कैसे यूज़ करते दिखाते हैं। तो एजेक्स के लिए सबसे पहले हम लोग को jQuery का CDN डाउनलोड करना पड़ेगा या उसको कॉपी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा गूगल में, ठीक है, गूगल में jQuery, ठीक है, तो वो jQuery, आई गेस इंटरनेट प्रॉब्लम था। सो उसके लिए मेरे को लाना पड़ेगा अपने सिस्टम में jQuery, ठीक है। तो jQuery लाने के लिए यहाँ पर मैं jQuery लिखा और यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दिया। अब इसमें से jQuery का जो CDN है उसको मेरे को पहले लाना पड़ेगा अपना सिस्टम में। तो यहाँ पर jQuery CDN लिखना पड़ेगा, तो jQuery का CDN यहाँ पर है। और ये जो पहला है jQuery 3x, अनकम्प्रेस को क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी हो गया। और इसमें वी हैव टू, अब मेरे को उसको पहले स्क्रिप्ट में मेरे को इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए क्या, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से जो भी एनोनिमस जो भी है इसको मेरे को हटा देना पड़ेगा, इंटीग्रिटी ये सब का, ठीक है। अब मेरे सिस्टम में, मतलब मेरे वेब पेज में jQuery आ चुका है। अब मैं इसमें jQuery का काम इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए मेरे को $.ajax, ठीक है, एजेक्स का काम करना है। तो एजेक्स क्या है, ये एक एसिंक्रोनाइज पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मेरा जो डेटा है वो मैं किसी और साइट में भेज सकता हूँ रियल टाइम में, और वहाँ से मैं रिस्पॉन्स ले सकता हूँ रियल टाइम, ठीक है। ये फ़ायदा होता है एजेक्स का। सो ajax.url, अब मेरे को अपना मेरा फाइल को भेजना कहाँ है, मेरा फाइल को भेजना है check.php में, ठीक है। सो वी हैव टू सेंड इट इन check.php। और क्या मेरे को इसमें कुछ डेटा सेंड करना है, हाँ मेरे को डेटा सेंड करना है, .data डेटा मेरे को क्या क्या सेंड करना है, दैट डेटा में मेरे को 2 डेटा सेंड करना है। दैट एक मेरे को करना है ईमेल, ठीक है, ईमेल, और इसमें मेरे को है ईमेल है मेरे पास, एंड दूसरा है दैट AWSWRT पासवर्ड, दैट इसमें भी है मेरा AWSWRT पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद कॉमा देके, इसे ये आपको जैसे अगर किसी ने जेसन पढ़ा होगा तो इसमें मेरे को जेसन फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डेटा सेंड कर दिया और मेरे को इसका मेथड क्या चूज़ करना है, मेथड पोस्ट, ठीक है, मेथड पोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये सक्सेस हुआ, सक्सेस हुआ, तब जाके एक फंक्शन मेरा क्रिएट होगा, ठीक है। उस फंक्शन में कुछ डेटा रिटर्न आएगा और इस डेटा के साथ हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस चेक, अब जो मेरा फाइल है अब मेरा कहाँ पर चल जाएगा, ये पूरा फाइल जो भी मैं एंटर करूँगा वो चल जाएगा check.php में, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को उसको चेक करना पड़ेगा .post पोस्ट, और यहाँ पर भी इसको करना है post पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न करेगा जो भी मेरा डेटा है, तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक इसको भी काम नहीं, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज और इसको भी क्लोज। सो
अब मेरे को पहले चेक करना है कि जो भी मेरा डेटा आ रहा कहाँ आएगा, डेटा मेरा आएगा check डॉट php, ठीक है। सो पोस्ट में मेरा कोड एकदम सेम रहेगा, कोड में मेरा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब मेरा जो भी डेटा रिटर्न करेगा इस सक्सेस में, जो भी डेटा मेरा यहाँ पर रिटर्न आएगा सक्सेस में, वो मेरा क्या हो जाएगा, एको हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एको। तो इसको मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग। इसमें क्या करना है, इसमें करना है दैट डेटा, कॉपी, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, और इसको मैं करता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ F12 रन। F12 में तो वहाँ पर 0810@gmail.com और यहाँ से कैपिटल SUB@1234। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर सक्सेसफुल लॉगिन का मेरे पास आया है, और यहाँ पर अगर मैं कुछ गलत देता हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है ईमेल नॉट रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर ईमेल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसका नेटवर्क्स में जाऊँ, यहाँ पर नेटवर्क्स में जाऊँ तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर check.php का फाइल एक रिटर्न आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है check.php। सो यही काम करता है एजेक्स। एजेक्स क्या करता है, मेरा पूरा डेटा को सेंड करता है कहाँ पर, एक और फाइल में, और वहाँ से वो रिटर्न करता है, ठीक है। एजेक्स नेटवर्क बहुत इशू होता है। एजेक्स नेटवर्क बहुत इशू हो रहा है। सो यही काम करता है मेरा एजेक्स। अगर मैं इसका नेटवर्क्स में जाऊँ तो नेटवर्क्स में यहाँ पर देखिए check.php में यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मैं सेंड कर रहा हूँ उसको पोस्ट, एक पोस्ट मेथड्स के थ्रू मेरा पूरा डेटा वहाँ पर जा रहा है विद सम हेडर्स एंड समथिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेटा का फॉर्मेट क्या है, ये मेरा डेटा फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं अगर मैं यहाँ पर करेक्ट डेटा देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सेंड करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ gmail.com और मैं इसे सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब मेरे नेटवर्क्स में हम लोग थे, यहाँ पर कहाँ था लॉगिन के साथ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा check.php, ठीक है। इस check.php मेरा पूरा डेटा, पूरा व्यू सोर्स, इसमें सब मेरे को मिल जाएगा। तो यही काम करता है मेरा क्या, एजेक्स। एजेक्स क्या करता है, मेरे रियल टाइम में मेरा डेटा को सेंड करता है एक जगह में, और वहाँ से मेरा रिटर्न लेके आ जाता है, ठीक है। तो इसका मेरा जो एक्शन है, इसका एक्शन तो मेरे को एक्चुअली हटा दें, या अगर मैं एक्शन ना भी दे तो भी चलेगा। तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ, ईमेल और पेज का, हाँ ठीक है। तो यही है हम लोग का पूरा एजेक्स। और कल हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग अपने डेटा को किसी MySQL डेटाबेस में सेव करते हैं। कल नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग डेटा को मतलब MySQL डेटाबेस में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, या बैकएंड में कैसे हम लोग काम करते हैं, वो हम लोग पूरा नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जैसे सेशन, कुकीज़, वो सब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। सो आज का जो भी कोड है मैं इसको इसमें मैं अप कर दूंगा, मतलब व्हाट्सएप में, और आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू आज का सेशन के लिए।